Hello, my dear learners of class 11. How are you all? Great. So today I'm taking one of your lesson, Mother's Day. Earlier we went through the lesson and got an understanding of the lesson. Uh, Let me just revise it quickly. Uh, it's a play. Mother's Day is a play written by B Priestley. And he has raised a very sensitive issue. The way we behave with the lady of the house, whether she is a wife or a mother, we take her for granted. We think that it's a duty to do every task of ours. And she doesn't need a break, she doesn't need any recreation. है ना? हम क्या सोचते हैं कि जो हमारी मदर है, माँ है घर में, या जिनकी वाइफ है घर में, वो ये सोचते हैं कि सारा टाइम बस लेडी ऑफ द हाउस को हमें टाइम पे खाना मिले, हमें टाइम पर चाय मिले, हमें टाइम पर हमारे कपड़े आयरन मिले, ये सब काम हमारे होते चले जाएं और हमें कभी भी उनको ब्रेक नहीं चाहिए, कभी भी उनको रिक्रिएशन नहीं चाहिए, कभी भी उनको आउटिंग नहीं चाहिए. But do you think this is correct? No. She should be given proper respect, proper dignity, and she also needs some rest. How can she work 24/7 into 365 days? She needs some rest. So, J.B. Priestley raises a very sensitive issue through a play named Mother's Day, and very uh, sarcastically, he awakens us that we should take care of the lady of the house. There are five main characters of this play: Mrs. Annie Pearson, Mr. George Pearson, then their daughter Doris, and their son Cyril. These are four members of a family. And then there is one neighbor who's a friend also of Mrs. Pearson, and her name is Mrs. Fitzgerald. So the lady of the house is not happy with the behavior of her children and her husband, and she complains this to her friend, Mrs. Fitzgerald. And Mrs. Fitzgerald is a very strong, aggressive, and domineering woman. And she says, why are you taking all this? Why don't you react? And she advises her many times, but Mrs. Fitzgerald is unable to, Mrs. Pearson, sorry, is unable to do anything. She doesn't know how to start and when to start with her family to correct them. So ultimately, Mrs. Fitzgerald, who also knows some magic, and she is also a fortune teller, she tells her, वो बताती है कि चलो हम ना पर्सनालिटीज को चेंज करते हैं. तो वो पर्सनालिटीज चेंज करते हैं. बॉडी मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जरल्ड चली जाती हैं और मिसेस फिट्जरल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन. अब मिसेस पियर्सन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी बन जाती है. बॉडी तो वही है ना? बच्चों को और हस्बैंड को तो वो वही लग रही है, लेकिन नाउ शी इज अ चेंज्ड लेडी क्योंकि मिसेस फिट्जरल्ड उसकी बॉडी में चली गई है. So she becomes strong, aggressive, and she reacts and talks harshly to them to teach them a lesson. And this way, when she tells them that I do need a break, and now onwards every weekend I'll be on leave, I'll go out. So ये चीज तो वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते ना, क्योंकि आदत ही नहीं है इस सब चीजों की. तो फिर लेटर ऑन कैसे मिसेस फिट्जरल्ड वापस आती हैं उनके घर में, एंड दे अगेन चेंज बैक, एंड इन वन डे द फैमिली अंडरस्टैंड्स. थोड़ा सुधरने लग जाती है वो फैमिली, है ना? तो दिस इज द स्टोरी. अब तो
आप सबको ध्यान आ गया होगा. So let's go through the MCQs, short questions and long questions. I could not take all and could not add all in the description box. So there is a word limit in the description box. So uh, rest you can see in the video. Okay. So let's start with. Yes. Just a second. And we'll be talking about these MCQs first, then the short questions, and then the long ones. Right? So let's go through the multiple choice questions. The first question, and one of my favorite question, because I want you all to know the authors of each and every lesson. That is very important. Right? Name the author of the Mother's Day. B Priestley, B Priestley, William Wordsworth, Vikram Seth. So, which is the correct option? Right. B Priestley. I just now also repeated the name of the author. So, who's the author of this lesson, Mother's Day? B Priestley. So, option B is the correct option. Right? Let's move on to the next. What does the play Mother's Day talk about? Status of the mother in the family, status of the family in the society, status of the children in the family, and status of the daughter in the family. So, about whom throughout he talks about? The mother. So, which option do you think is the correct one? Option A. Good. Let's move on to the next question. Mrs. Fitzgerald is the dash of Mrs. Pearson. Who is she? Is she a relative, or she is a daughter, or a neighbor, or a sister? Who is she? Mrs. Fitzgerald. Yes, she is the neighbor of Mrs. Pearson. Right. Let's move on to the next. Mrs. Fitzgerald is dash. You have to tell two features of her character. Is she young and weak, old and weak, young and strong, old and strong? Yes, Mrs. Fitzgerald is old and strong. So, which option is this? Yes, option D is the correct option in this question. Okay, shall we move on to the next? Let's see what question 5 says. Yes, question 5 asks, how does Mrs. Pearson describe her family members? कैसे हैं उसके परिवार के लोग? Let's see the options. Thoughtless and selfish, pleasant and helpful, hardworking, mindful. Yes. कैसे हैं? Thoughtless and selfish. Pleasant तो नहीं थे, हार्ड वर्किंग भी नहीं थे, माइंडफुल भी नहीं थे. नहीं तो फिर ये कंप्लेंट ही ना होती मिसेस पियर्सन को, है ना? क्यों वो कंप्लेन करती अगर ये प्लेजेंट होते, हेल्पफुल होते, हार्ड वर्किंग होते या माइंडफुल होते? इनमें से कुछ भी नहीं थे. So what were they exactly? They were thoughtless and selfish. So option A here is the correct option. How does Mrs. Fitzgerald plan to help Mrs. Pearson? Mrs. Fitzgerald कैसे प्लान करती हैं कि कैसे मैं हेल्प करूं? Let's see the options. By talking to Mrs. Pearson's family. वो तो चाहती है, कहती है कि मैं बात करूं तुम्हारे परिवार से, बट मिसेस पियर्सन सेज नो. ये तो बहुत अनप्लेजेंटनेस हो जाएगी ना, कि वो कहेंगे हमारे घर की बात आप बाहर करती हो. ये तो कोई फैमिली मेंबर पसंद नहीं करेगा. या फिर बाय लिसनिंग टू मिसेस पियर्सन रैंट्स, कि उनकी शिकायतें सुनती रहो. नहीं. बाय स्वैपिंग पर्सनालिटीज विद मिसेस पियर्सन, या पर्सनालिटीज को चेंज करने के लिए, या बोथ ए एंड बी. तो कौन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? विच वन इज द करेक्ट वन? Yes, changing of
personalities, that is swapping of personalities. And option C over here is the correct option, right? Now let's move on to the next. Are you all understanding? Yes. Mrs. Pearson was dash about Mrs. Fitzgerald's plan. कैसा लग रहा था उसको? मिसेस फिट्जरल्ड कह तो रही हैं कि ये प्लान बना लेते हैं. Was she excited? Was she hesitant? Was she sure? और was she envious? थोड़ा सा हिचकिचा रही थी ना, थोड़ा डर रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो और मेरे परिवार के लोग और मुझे तंग करेंगे, सुनाएंगे. तो which option? Yes, option B. Hesitant. She was hesitant about Mrs. Fitzgerald's plan. कि मानूं या ना मानूं. Name the children of Mrs. Pearson. उनके बच्चों का क्या नाम था मिसेस पियर्सन? ये वर्ड्स बार बार रिपीट हुई हैं. डॉरिस एंड साइरल, डॉरिस एंड बोरिस, साइरल एंड जॉन, डॉरिस एंड जॉन. So, which were these names? I don't think I should tell you because you all know the answer. And the correct answer is option A, Doris and Cyril. Great, very nice. Yes. Next is Mrs. Pearson was dash about Mrs. Fitzgerald's plan. Oh, this question has been repeated. She was hesitant. Okay, let's move. Mrs. Fitzgerald asks Mrs. Pearson to be dash with her family. कैसे बिहेव करने को कहती है वो? रूड होने को कहती है, पोलाइट होने को कहती है, इग्नोरेंट होने को कहती है, फर्म होने को कहती है. रूड होने को तो वो नहीं कहती, पोलाइट होने को भी नहीं कहती, इग्नोर उनके बारे में ना जानकारी हो वो भी नहीं. तो फर्म, वॉट एवर यू से, बी फर्म. So, which option is the correct one? Option D is the correct option. What message does the author of Mother's Day try to convey? क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है इस प्ले के थ्रू ऑथर ने, बी प्रीस्टले ने? To appreciate wives, mothers for their work, to work hard for your mother, to spend time with family, to respect everyone. तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? यस, ऑप्शन ए कि अप्रिशिएट योर वाइफ्स और मदर्स फॉर वॉट एवर दे डू, बिकॉज दे डू मल्टीटास्किंग, बहुत कुछ करती हैं, है ना? टू कीप द हाउस क्लीन, टू कीप योर क्लोथ्स रेडी, टू प्रिपेयर फूड फॉर यू, एवरीथिंग. सो दे शुड बी अप्रिशिएटेड, they should be respected, isn't it? So this answer correct option is option A. Okay, now let's talk about short answer questions, right? What are the short questions? Let's discuss. What do you think is Mrs. Pearson's complaint against her husband and children? क्या complaint है? क्या कहती हैं वो? Mrs. Pearson complains against her husband and children is that they are thoughtless and selfish. ये हमने MCQ में भी किया था ना कि कैसे थे उसके परिवार के लोग. They were thoughtless and selfish. उसके बारे में नहीं सोचते थे और selfish थे, अपने ही अपने बारे में सोचते थे. They treat her almost like a domestic servant. उसको कैसे ट्रीट करते थे? जैसे घर का कोई नौकर. They come home in the evening and leave home soon for enjoyment, whereas they have no break, no holiday, and no. Whereas she has, right? वो शाम में आते हैं, फिर से रेडी होते हैं और चल देते हैं. जबकि जो मदर है, मिसेस पियर्सन है, उसको कोई ब्रेक नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है और कोई एंजॉयमेंट नहीं है. Who is Mrs. Fitzgerald? What does she advise Mrs. Pearson? और Mrs. Fitzgerald कौन है और वो Mrs. Pearson को क्या सलाह देती हैं? Mrs. Fitzgerald is Mrs. Pearson's
नेबर एंड फ्रेंड, वो पड़ोसी भी है और मित्र भी है, सहेली भी है. A fortune teller who had learned the art from the East, she tells Mrs. Pearson that her fortune could turn either way. With effort and counsel, the situation would swing in her favor. She advised her to assert herself as the boss of the house. अब वो फॉर्च्यून टेलर भी है जो कि उसने ईस्ट में वो जो 10 years रही वहां से सीखा. वो मिसेस पियर्सन को कहती है कि देखो मैं भविष्य बताऊंगी तो उससे हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए, है ना. मैं तुम्हें कुछ सलाह दूंगी, मेरी एडवाइस पर चलो. तो वो उसको क्या एडवाइस करती है कि अपनी बात पर फर्म रहो, अपनी बात पे खड़ी रहो. Put your foot down when you find anything wrong and be the boss of the house because you do everything. So be the boss of the house. Okay. Now the question 3 is, what does Mrs. Fitzgerald offer to do for her? क्या करने को कहती है कि मैं क्या कर दूंगी. Mrs. Fitzgerald sensed that Mrs. Pearson was too far gentle, submissive, and generous to tackle her family. कि बहुत सीधी है, बहुत जेंटल है और ये अपनी फैमिली को टैकल नहीं कर सकती. Mrs. Fitzgerald offered to make them realize the error of their ways not as Mrs. Fitzgerald but as Mrs. Pearson. कि मैं स्वैप करते हैं हम अपनी पर्सनालिटीज को और मैं उनको रियलाइज कराऊंगी कि वो कहाँ गलत है. सो शी ऑफर टू चेंज देयर बॉडीज एंड चेंज बैक अगेन, कि अभी हम बदल लेते हैं, जैसे वो ठीक हो जाएंगे हम वापस चेंज कर लेंगे. What does Mrs. Fitzgerald offer to do for her? क्या ऑफर करती हैं. हाँ, this is done. Question number 4 is, how do Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson exchange personalities and what for? कैसे चेंज करती हैं और किस लिए. मिसेस फिट्जरल्ड होल्ड्स हैंड्स, दोनों एक दूसरे के हैंड्स होल्ड करती हैं. दे लुक एट ईच अदर, आई कांटेक्ट करती हैं. शी मटर्स अ स्पेल, कुछ जादू बोलती हैं वो, मंत्रा जैसे. दे बोथ देन बोथ द वुमेन गो लैक्स, और एकदम ढीली पड़ जाती हैं दोनों. दे कम टू लाइफ सून बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, जल्दी से एकदम जागृत होती हैं लेकिन एक दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ. They do so in order to teach a lesson to Mrs. Pearson's family. ऐसा क्यों करते हैं? मिसेस पियर्सन की फैमिली को सबक सिखाने के लिए. Let's see the next question. What is Doris' first reaction on seeing her mother? Why? जब उसने अपनी माँ को घर आके देखा, अरे क्या कर रही है आज तो माँ के हाव भाव बदले हुए, तो क्या रिएक्शन रहा और क्यों. Doris was taken aback to see her mother smoking and playing cards. अब वो तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था ना, वो घर आई तो वो स्मोक भी कर रही है, कार्ड्स भी खेल रही हैं. When Doris asks her what she was doing, she is startled to get her answer, whitewashing the ceiling. उन्होंने पूछा क्या ये क्या कर रही हो, तो जवाब ने तो और अचंभे में डाल दिया, शॉक में डाल दिया. क्या जवाब मिला? छत पेंट कर रही हूँ. Moreover, her conduct was not nervous and apologetic, but cool and incisive. और माँ डरी हुई और नर्वस से तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी, बड़े शांत सी स्वभाव से उन्होंने फर्मली ये जवाब दे दिया. Describe how the new Mrs. Pearson deals with Cyril. Cyril को कैसे हैंडल किया. Cyril is another person whom the changed mother sets right. ये बेटा है, इसको कैसे, ये दूसरा, पहले डॉरिस देन साइरल, इसको कैसे ठीक करती हैं. शी टेल्स हिम टू हेल्प हिमसेल्फ इन द किचन एंड प्रिपेयर टी. ये कहती खुद जाके बना ले अपनी चाय.
She points out how he has been wasting much money and time at dog races and ice shows, और उसको बताती है कि तू कैसे कैसे कहाँ कहाँ पैसा बर्बाद कर रहा है. आई नो, डॉग रेसेस में जाता है, आइस शोज में पैसा बर्बाद करता है. She also informs him that she would be taking holiday on weekends. और कहती है कि हाँ भाई एक बात सुन लो, इस वीकेंड से सैटरडे संडे मेरी छुट्टी हुआ करेगी और मैं घूमने जाऊंगी. ये बात कैसे टॉलरेट करें भाई, आदत नहीं है ना. Why was George Pearson surprised when he came home? What was the answer that he got? जॉर्ज पियर्सन जब आया, हस्बैंड, अब हस्बैंड की बारी. जब वो घर आया तो वो क्यों सरप्राइज हुआ और क्या जवाब मिला उसे? Mr. George Pearson was surprised to see Doris crying and was shocked to see Mrs. Pearson sipping beer. जब वो घर आए तो देखा डॉरिस रो रही है और मैडम आराम से बैठ के बियर पी रही हैं. He said that it did not look right. कहने लगा ये सब ठीक नहीं लग रहा. तो मिसेस पियर्सन ने जवाब दिया, शी रिप्लाइड दैट इट वाज ए नाइस चेंज. अरे भाई अच्छा चेंज है. एंड इट हैड बीन क्वाइट सम टाइम सिंस ही वाज सरप्राइज्ड एट हर. और क्योंकि काफी टाइम से मैंने तुम्हें सरप्राइज नहीं किया था तो इसलिए मैंने ऐसा किया है. क्या बढ़िया जवाब दिया है ना. What was the truth about Mr. George Pearson that hurt him the most? क्या सच्चाई बता दी जॉर्ज पियर्सन को कि उनको बहुत दुख हुआ? Mr. Pearson told George that he was one of the standing jokes in the club. So बोला क्या रोज क्लब चला जाता है, वहां सब तेरा मजाक बनाते हैं रोज के रोज. He was called Pompey Ompy Pearson. और तुझे पता है तेरा क्या नाम रखा हुआ है? उन्होंने बता दिया मिसेस पियर्सन ने कि तुझे पॉम्पी ऑम्पी कह के बुलाता है. बिकॉज दे थॉट दैट ही वॉज स्लो एंड पॉम्पस, कि इतना ढीला है और मोटा है. शी वॉज सरप्राइज दैट ही स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर पीपल ऑलवेज रिडिक्यूल्ड हिम लीविंग हिज वाइफ एट होम. कहने लगा कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे तू रोज वहां चला जाता है जहां लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं और यहाँ जो तेरी वाइफ तेरी रिस्पेक्ट करती है उसको तू छोड़कर चला जाता है. अब ऐसा जवाब तो भाई मिस्टर पियर्सन को बिल्कुल आदत ही नहीं थी सुनने की, है ना. तो वो तो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो गए. नाउ व्हाट वाज द ट्रूथ अबाउट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. What does Mr. Pearson ask her family to do? मिसेस पियर्सन ने क्या कहा अपनी फैमिली को? सारे ढीले हो गए एक ही दिन में, है ना. When Mrs. Fitzgerald has gone, the real Mrs. Pearson asks her family to do as she wants them to. उसने कहा जो मैं चाहती हूँ वो तुम सबको करना. क्या कहा? She wants them all to stay at home that evening and perhaps play a game of rummy with her. उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों में से आज कोई भी बाहर ना जाए और मैं चाहती हूँ कि हम घर में बैठ के रमी कार्ड्स की एक गेम होती है वो खेलें. She asks her son and daughter to get the supper ready. कि और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठेंगे और तुम दोनों जाकर डिनर रेडी करोगे. इन द मीन टाइम शी विल हैव अ टॉक विद हर हस्बैंड जॉर्ज. और इतनी देर मैं और जॉर्ज बात करेंगे. वाह, है ना चेंज. नो वन डेयर्स टू चैलेंज हर डिमांड. और किसी में भी हिम्मत नहीं है उसकी बात को टालने की. तो सारे के सारे उसकी डिमांड को ओके करके फटाफट पूरा करते हैं. देखा कैसे जल्दी से सबको उसने ठीक किया, है ना. Now, I've taken two long questions, and these long questions could not be added in the description box. So, you have to go through this video and note down these answers, right, learners? Okay, let's see.
Mrs. Fitzgerald's effort does not go in vain as the family changes for the better. Justify. How can you say कि मिसेस फिट्जरल्ड ने जो एफर्ट किया वो खराब नहीं गया, है ना? नहीं गया ना खराब। एक दिन में परिवार सुधर गया और फैमिली जो बेटर हुई वो अच्छे के लिए हुई, है ना? मिसेस पियर्सन हैज ए सेल्फिश एंड अ थॉटलेस फैमिली। कैसी फैमिली थी? सब सेल्फिश थे, अपने अपने लिए सोचते थे और उसके लिए नहीं सोचते थे। हु इज इनसेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ द मदर। और कैसे थे सारे? माँ की फीलिंग्स के लिए, जॉर्ज पियर्सन अपनी वाइफ की फीलिंग्स के लिए, डोरिस एंड साइरल अपनी मदर की फीलिंग्स के लिए इनसेंसिटिव थे, बिल्कुल सोचते नहीं। But after the staged trick, and when Mrs. Fitzgerald leaves, the three, George, Doris, and Cyril, look anxiously at Mrs. Pearson, who smiles. लेकिन जिस ट्रिक से मिसेस फिट्जरल्ड ने पर्सनालिटी स्वैप की थी, पहले मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पियर्सन की बॉडी में चली गई और फिर जब मिसेस पियर्सन ने कहा यार बहुत हो गया, प्लीज अब बस करो, तो उसने वापस स्वैप हो गई। मिसेस पियर्सन बन गई और मिसेस फिट्जरल्ड बन गई। तो ये जो तीन लोग थे, जॉर्ज, डोरिस एंड साइरल, उन्होंने अपनी माँ को बड़ी एंक्शसली देख रहे थे। याद है ना, उसने कहा था मिसेस पियर्सन ने कि तुम थोड़ी देर के लिए हम दोनों को अकेले छोड़ दो, मिसेस फिट्जरल्ड को और मुझे। और तब उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज बहुत हो गया और मैं रोते हुए नहीं देख सकती, अपने परिवार को परेशान नहीं देख सकती, चेंज करो, वापस चेंज करो। और वो चेंज कर लेते हैं, फिर मिसेस फिट्जरल्ड चली जाती है। तो सारे अपनी माँ को, वाइफ को ऐसे देख रहे हैं, मिसेस पियर्सन को, और वो मुस्कुरा रहे। दे आर मच रिलीव्ड एंड स्माइल बैक एट हर। अब इतनी देर से शाम से मुस्कुराई नहीं थी, तो वो उसको मुस्कुराते हुए देख के सब साई ऑफ रिलीव और वो भी मुस्कुराते हैं उसकी तरफ। मिसेस पियर्सन टेल्स देम दैट सिंस दे हैव डिसाइडेड टू स्टे एट होम, अब उसने उनको कहा कि आप सब मैं चाहती हूँ कि तुम सब आज घर में रहो। तो कहती है चलो, तुम मान जाते हैं सब, तो चलो तुमने ये डिसाइड किया है कि तुम लोग सब घर में रहोगे। दे वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन द चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी while she talked with their father। तो कहने लगी कि अब ऐसा करेंगे, तुम दोनों बच्चे जाके डिनर रेडी करो और इतना टाइम मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ऑल ऑफ देम एग्री, मान गए सब एकदम, हाँ हाँ ठीक है। Mrs. Pearson wishes Mrs. Fitzgerald goodbye, and the family surrounds Mrs. Pearson, implying a happy ending. मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जरल्ड को गुड बाय करती है और पूरी फैमिली मिसेस पियर्सन के चारों तरफ बैठ जाती है। तो ऑथर हमें क्या दिखाना चाह रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि प्ले का जो एंड है वो हैप्पी एंडिंग है। It looks as if Mrs. Fitzgerald's effort is rewarded and they seem eager to appease the real Mrs. Pearson। ऐसा लगता है कि मिसेस फिट्जरल्ड की ने जो एफर्ट किया था चेंजिंग ऑफ पर्सनालिटीज, उसका फायदा हो गया, इनाम मिल गया, उसका रिवॉर्ड मिल गया और वो सारे के सारे मिसेस पियर्सन को खुश करने में लग गए। Now let's see the next one. Compare and contrast the characters of Mrs. फिट्जरल्ड एंड मिसेस पियर्सन। अब देखिए, ये बड़ी सोच समझ के दो कैरेक्टर्स ऑथर ने डेवलप किए हैं, जेबी प्रीस्टले ने, और वो चाहते थे कि कंट्रास्ट कैरेक्टर्स खड़े करूं। एक लेडी है मिसेस पियर्सन जो कि बहुत डरपोक, नर्वस सी और सबमिसिव सी और जो जैसा कहे वैसे करने वाली, और उसके कंट्रास्ट में दूसरा कैरेक्टर खड़ा किया मिसेस फिट्जरल्ड का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत अग्रेसिव है, जो कि बहुत फर्म है,
जो कि लाइफ अपनी शर्तों पे जीना चाहती है, ठीक है ना। उसी से तो उसको एहसास होगा कि भाई मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी भी कोई डिग्निटी है, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, isn't it? So Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson are two ladies with contrast characters. Different, उल्टे characters हैं दोनों. Mrs. Fitzgerald is strong, aggressive, liberated and dominant. वो स्ट्रांग है, अग्रेसिव गुस्से वाली है, अब कोई उसको थोड़ा सा कोई पंगा ले तो बता देती है, आज़ाद ख्यालों की है और सामने वाले को डोमिनेट करने वाली है। शी लिव्स लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जीती है। शी स्मोक्स, प्लेज कार्ड्स एंड ड्रिंक्स स्टाउट। वो स्मोक भी करती है, कार्ड्स भी खेलती है, ड्रिंक भी करती है। शी कैन चैलेंज एनीबॉडी, और किसी को भी चुनौती दे देती है, बहुत स्ट्रांग है दिमाग से भी। शी इवन जंप्स अप टू स्लैप जॉर्ज। जब वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में थी और जॉर्ज ने कुछ उसको उल्टा सीधा बोला तो वो एकदम खड़ी हो गई थी उसको चांटा लगाने के लिए, इतनी स्ट्रांग थी। शी रिब्यूक्स डोरिस फॉर हैविंग सच अ बॉयफ्रेंड, और उसको डांटती है, इससे पहले कभी हिम्मत नहीं हुई थी। उस दिन डांटती है कि कैसा बॉयफ्रेंड रखा है, मुझे तो बिल्कुल नापसंद है वो। शी टेक्स साइरल टू टास्क फॉर वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑन डॉग रेसेस एंड आई शोज। फिर साइरल को भी सही लगाती है कि क्या तू इधर उधर इतना पैसा बर्बाद करता है ना, ये रेसेस में पैसा लगाता है, लगातार शोज देखने जाता है, कितना पैसा तू वेस्ट करता है, घर की तरफ ध्यान नहीं है, उसको डांटती है। मिसेस पियर्सन ऑन द अदर हैंड इज वीक माइंडेड एंड डिसाइड। वो बहुत डरपोक प्रवृत्ति, कमजोर दिमाग की औरत है और डर जाती है, घबरा जाती है। शी डज नॉट डेयर टू डिसप्लीज एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, और इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि परिवार के किसी आदमी को नाराज कर सके। नो नो, बहुत डरती है। She agrees with the way suggested by Mrs. Fitzgerald, but she's afraid of hurting the feelings of the member of her family. जिस दिन उन्होंने पर्सनालिटी चेंज की, उससे पहले भी वो कंप्लेन करती रही होगी बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, तो वो उसको सजेस्ट करती थी कि भाई तुम ऐसे ठीक कर सकते हो थोड़ा सा अपने परिवार को, लेकिन वो कभी भी अपने फैमिली मेंबर्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी और इस वजह से वो कभी भी उनको ठीक नहीं कर पा रही थी। शी इज़ रादर नर्वस बट ऑल्सो हैज़ अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। वो घबराई हुई है लेकिन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लेडी है। वी सर्टेनली नीड मोर वीमेन लाइक मिसेस फिट्जरल्ड हु कैन स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। हमें कैसी लेडीज की ज़रूरत है, कैसी लेडीज होनी चाहिए आप, यू ऑल कैन टेल मी। All the girls, all the women need to be strong. इतने स्ट्रांग हो कि अपने हक के लिए हम खड़े हो सकें, हम लड़ना पड़े तो लड़ भी सकें। So these were the two short questions, sorry, long questions which I have taken, and these you have to take from the video because they could not be added in the description box, right? So this lesson is a very good lesson. I find it very interesting and very awakening too. ये जागृत करता है स्पेशली हम लेडीज को कि कोई अननेसेसरली हमें दबाना चाहे, हमें एक्सप्लॉइट करना चाहे, कि ये लेडी है तो इसका कोई काम नहीं है। यू नो, आजकल वर्ड एक यूज होता है होम मेकर। We don't use words housewife, we say homemaker because to make a home it takes lots and lots of hard work, multitasking, एक टाइम में कितनी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, so it's not an easy task, right? So this is all for today, and my dear learners, what you all have to do is, yes, like this video and
Also, subscribe to my channel English, those who have not yet subscribed, and ask your family members and your friends to subscribe to this channel. So, this is all for today. Goodbye.